بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک انوکھا واقعہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار میان میں رکھی اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلے جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ لے کر نہ جاتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار روانہ ہو گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملہ ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواریاں آ سکتی تھی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے پر تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا، آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھوپڑی کے آگے جا رکا۔ سلطان کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی
तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकली और उसने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, ए मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुज़रता है तो मैं ही उसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आप रात को मेरे घर पर ही क़याम करें। वो नहीं जानती थी कि ये मुसाफिर कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने आपको मुसाफिर समझा और झोपड़ी के अंदर ले गई। उसने सुल्तान को मुसाफिर समझा और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आदमी के हुलिये में थे, लिहाजा उस औरत को पहचानने में मुश्किल हो गया कि आप कौन हैं। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया, सुल्तान को पेश किया। बूढ़ी औरत की बातों से ही सुल्तान को पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत मुसलमान है और वहाँ एक मस्जिद देखकर सुल्तान को ये भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आराम से बैठकर खाना नोश फरमाया। लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। आपकी दूर अंदेश आँखों ने ये जांच लिया था कि वो बूढ़ी औरत इस वक्त बहुत परेशान थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर में एक नौजवान हसीन व जमील लड़की सो रही थी। सुल्तान ने बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी, ये कौन है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, तुम ये पूछ कर क्या करोगे? तुम नहीं जानते कि कल मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुल्तान हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी बताएं, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा, बेटा, शायद आपने भी समुंदर के किनारे एक बुत खाना देखा होगा। हमारी बस्ती के लोगों का ईमान है कि इस बुत खाने में हर साल एक शैतान आता है और वह शैतान एक नौजवान और कंवारी लड़की की बलि लेता है और हर साल हमारी बस्ती में चिट्ठी डाल के जिस नौजवान लड़की का नाम आ जाए उस लड़की को उस बुतखाने के अंदर दुल्हन बनाकर बिठा दिया जाता है और रात को जब वह शैतान आता है तो उस लड़की को मार देता है और उसका खून पीने के बाद वहाँ से चला जाता है और साल में एक बार वह शैतान आता है और हमारी बस्ती वालों का एक कहना है कि अगर उस शैतान को बलि ना दी गई तो वो सारी बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए और कहा, अम्मा जी, मुसलमान होकर बस्ती वालों का इतना कमज़ोर ईमान, ये बहुत शर्म की बात है कि कभी शैतान भी मंदिरों में आए और नौजवान कंवारी लड़की की बलि ले। शैतान कभी इंसान का खून नहीं पीता है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि हर साल हम उस मंदिर के अंदर एक कंवारी लड़की को बिठाते हैं और जब सुबह उस मंदिर में जाते हैं तो उस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मर जाती है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की की बारी नहीं है बल्कि मेरी इकलौती बेटी की बारी है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को उस मंदिर में बिठाया जाएगा और मेरी इकलौती बेटी कल शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बलि देने से रोका तो इस बस्ती वाले हम दोनों को मार देंगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हैरान हुए और कहा, अम्मा जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप मुझ पर भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सुल्तान की बातों से थोड़ा बहुत तो इत्मीनान मिला, लेकिन ये खौफ उसे दिल ही दिल में खाए जा रहा था कि कल मेरी इकलौती बेटी शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली सुबह अपना सफ़र शुरू नहीं किया और वहीं ठहर गए। जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने औरत से कहा, अम्मा जी, आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर उस बस्ती वालों के सामने इस मंदिर में बिठा दें ताकि मैं उस राज से पर्दा उठा सकूं कि आखिर उस मंदिर के अंदर हकीकत में शैतान आता है या फिर ये बस्ती वालों का एक वसवसा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया कि उसके साथ धोखा हुआ और एक लड़की की जगह हमने एक मर्द को बैठा दिया तो वह बस्ती वालों को मार देगा।
ये सुनकर सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जान, अगर आपके दिल में ज़रा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट में बिठा दें। मैं आज की रात इस राज से पर्दा उठा दूंगा। उस बूढ़ी औरत ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को घूंघट में बिठा दिया और बस्ती वालों को कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल तैयार है, लिहाजा आप ले जा सकते हैं। बस्ती वालों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक डोली में बिठाया और उस मंदिर में जाकर बिठा दिया। बस्ती वाले चले गए, अंधेरा छाने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त मंदिर के अंदर घूंघट उतारा, समंदर के किनारे गए और वज़ू किया, नमाज इशा अदा करने लगे। नमाज इशा अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। वक्त गुजरता रहा, आधी रात का वक्त हुआ, लेकिन कोई भी शैतान नहीं आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हाजत की वजह से बाहर गए, समंदर के किनारे वज़ू किया और आकर दोबारा कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी, लेकिन अभी तक शैतान नहीं आया। इतने में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ। सुल्तान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान पाक की तिलावत में इतना मशगूल हो गए कि दोपहर का वक्त हो गया और सुल्तान को पता ही ना चला। दूसरी तरफ सुबह जब गांव वालों ने बूढ़ी की बेटी को देखा तो ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इस बूढ़ी की बेटी उस जगह मौजूद है तो फिर इस मंदिर में कौन लड़की रात को शैतान के हाथों बलि चढ़ गई। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले इकट्ठा होकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचे और आकर सवाल किया, बूढ़ी माँ, अगर आपकी बेटी सही सलामत आपके पास मौजूद है तो रात को मंदिर में कौन लड़की मौजूद थी जो कि शायद अब शैतान के हाथों मर चुकी होगी। तो उस बूढ़ी औरत ने बस्ती वालों को शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई और कहा, रात को मैंने अपनी बेटी की जगह एक मुसाफिर को, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था, उसको मैंने बिठा दिया था और रात को शायद शैतान ने उस मुसाफिर को मेरी बेटी की जगह मार दिया होगा। ये सुनकर तमाम लोग बस्ती वाले उस तजस्सुस के साथ उस मंदिर की तरफ दौड़ने लगे और देखा कि जाकर देखें आखिर उस मुसाफिर के साथ क्या हुआ। जब बस्ती वाले मंदिर के अंदर पहुँचे तो देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने जब सुल्तान को कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो वो लोग बड़े हैरान हो गए और कहा कि आखिर ये नौजवान सारी रात मंदिर के अंदर मौजूद रहा, लेकिन शैतान ने उसको कुछ ना कहा। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से उठे और उन बस्ती वालों को कहा, ए बस्ती वालों, मैं सारी रात कुरान पाक की तिलावत करता रहा, 3 बार समंदर के किनारे वज़ू करने के लिए गया, लेकिन मुझे तो कोई शैतान नज़र नहीं आया। ये सुनकर वह बस्ती वाले बड़े हैरान हो गए और फिर इतने में बूढ़ी अम्मा ने कहा, फिर ए मुसाफिर, हमें ये बताओ कि आखिर शैतान मंदिर में नहीं आता तो उस लड़की की जान कैसे निकल जाती है जिसको रात को मंदिर में बिठाया जाता है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस समंदर के दोनों तरफ जंगल ही जंगल हैं, पिछला हिस्सा सारा सुनसान है और सामने की तरफ समंदर है जिसकी रात को कितनी खतरनाक लहरें दिखाई देती है। आप ही अंदाज़ा करें कि जब एक लड़की को पता चल जाए कि उसकी मौत होने वाली है तो अपनी मौत से पहले उस खौफ से मर जाती है और फिर दूसरी तरफ वह जंगल ही जंगल और समंदर होने की वजह से आप जिस लड़की को बिठाते हैं वो उस डर की वजह से मर जाती है और कोई शैतान नहीं आता। लिहाजा तमाम बस्ती वालों को आज के बाद उस मंदिर में किसी भी लड़की को बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और दिलेरी की वजह से वह गांव वाले इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए और उस बूढ़ी औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैर चूमना शुरू कर दिया और फरमाया, ए मुसाफिर, अगर तुम न होते तो शायद अब तक मैं भी मर चुकी होती। मेरी बेटी के अलावा मेरा और कोई दुनिया में मौजूद न था
اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھیں، لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہوتے ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والے، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے جاتے ایک انتہائی انمول جملہ کہہ کر گئے کہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کبھی خدا مایوس نہیں کرتا۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔